Yes, good morning, dear students. Today we will discuss next topic of Unit 2, Partnership Organization. So, students, the limitation of sole proprietorship gave the birth to partnership. Actually, we have already studied in sole proprietorship, in which we studied we have limited managerial ability, limited resources, limited life of a business concern. Okay. So to remove these problems, partnership serve as an answer to the needs of greater capital investment, shared skills and sharing of risk. Okay. So in a way, partnership can be termed as an extension of sole proprietorship. एक तरह से सोल प्रोप्राइटरशिप को एक्सटेंड किया गया है पार्टनरशिप की फॉर्म में. So it is the form of business organization in which two or more persons agreed to carry on a lawful business with their personal resources for the purpose of earning profits. Okay, and in India, partnership is governed by Indian Partnership Act 1932, right? So when you are considering a partner, do not be in too great a hurry. Give yourself time to test him. Choosing partner is like choosing a wife. Marrying hesitate and repent in leisure. In either case, there is need for second thought and keen knowledge. में जो पार्टनर भी आपको चूज करना है उसको एक बार टेस्ट करके, क्योंकि अगर वो पार्टनर आपकी लाइफ में आप बिजनेस लॉन्ग लाइफ के लिए करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपको लॉन्ग टाइम के लिए आप अपना बिजनेस सर्वाइव करें और आपको सक्सेसफुली जो है वो रन कर सको, तो उसके लिए आपका पार्टनर जो है वो एक बहुत ही सोच समझ के आपको चूज करना है, राइट? सो व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप? So according to Indian Partnership Act 1932, partnership is the relation between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all. ठीक है, पार्टनरशिप क्या है? एक रिलेशनशिप है पर्सन्स के बीच में जो एग्री करते हैं टू शेयर द प्रॉफिट्स, मतलब कितना प्रॉफिट उनको मिलेगा, उनकी जो रेशियो होगी ऑफ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, मे बी कि जो सब बिजनेस जो है वो सबके द्वारा ही रन किया जाए, और देन एक्टिंग फॉर ऑल, या तो सबके द्वारा या फिर कोई एक भी कर सकता है. ओके, सबके भी हफ्ते. सो दिस इज द definition of partnership according to Indian Partnership Act 1932. And what is the meaning of partnership? It refers to that form of organization in which two or more than two persons willingly join and agree to run some lawful business. Okay. And two or more individuals may form a partnership by making a written or oral agreement that they will jointly assume full responsibility for the conduct of a business. Right, students? And on the basis of these definitions, it can be said that a partnership is a sort of agreement between two or more than two persons on the basis of which they divide the profit of some statutory business. This is lawful. So all those persons who agree to run some business jointly are individually called partners. जो भी person इसमें joint होंगे willingly, they called partners, and collectively a firm, and the name under which they run their business, that is called name of the firm. जिस firm में वो work करेंगे. Okay. Now we will discuss features. So students, features of partnership. First one, statutory features. Statutory features, first of all, more than one person. According to law, minimum number of partners needed to start a business is 2. According to law, okay. और 2 से कम तो partnership हो नहीं सकती, then it will be sole trade, okay. So and the maximum number of partnership firms can be 100, subject to number prescribed by the government. जी government के accordingly 100 persons इसमें maximum add हो सकते हैं. As per rule 10 of the company rules 2014, अब at present the maximum number of members can be 50. जो अभी रूल आया है अकॉर्डिंग टू जो कंपनीज एक्ट रूल 2014 का है,
उसके अकॉर्डिंगली जो मैक्सिमम लिमिट है दैट इज द 50. ओके. Second is the existence of business. The joining of two or more persons can be called partnership only when they agree to run some business. It is very essential that business should be legal. Business legal क्यों होना चाहिए? अब illegal क्या होते हैं? जैसे like जो जिस चीज की जो परमिशन जो है वो गवर्नमेंट से नहीं ली जा सकती, वो इलीगल बिजनेसेस हैं, उनको हम इसमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे. राइट. नेक्स्ट इज द कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप. Partnership comes into existence only on the basis of contract between the partners. Hence, it is important to have a contract between the partners. Therefore, those people who do not have the capability to enter into the contract cannot become partners. तो यहाँ कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप है, वो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप जो है वो रिटर्न में भी हो सकता है और ओरल भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, minors, mentally unsound persons or persons declared insolvent or ineligible by law cannot be taken as partners in the firm. जो persons जैसे minor में less than 18 years, unsound person जो properly mentally जो है sound नहीं है, and persons declared by ineligible means चाहे वो कोई पर्सन ऐसे हो सकते हैं जो जिन्होंने प्रिजन वगैरह में मतलब प्रिजनर हो या इस टाइप में कुछ हो, तो उनको भी यहाँ पर परमिशन नहीं है एज ए पार्टनर होने की. सो इट इज ट्रू दैट द माइनर कैन बी एडमिटेड एज ए पार्टनर. हालांकि माइनर जो है वो कुछ ही केसेस में पार्टनर हो सकता है अंडर सेक्शन 30, बट हिज एंट्री विल नॉट एंटाइटल हिम टू बी अ फुल फ्लैश्ड पार्टनर. फिर भी आप उसको एज ए फुल फ्लैश्ड पार्टनर की तरफ का वो जो रोल है वो नहीं होगा, बिकॉज ही इज द पार्टनर ओनली इन द प्रॉफिट्स. वो सिर्फ प्रॉफिट्स के लिए पार्टनर होगा, कंप्लीट उस बिजनेस में जो भी रनिंग होगी उसके लिए वो कंप्लीट पार्टनर नहीं होगा, फुल फ्लेज पार्टनर नहीं होगा. नेक्स्ट, प्रॉफिट मोटिव एंड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट. जिसका मेन मोटिव है वो जो है वो प्रॉफिट ही है. इफ द मोटिव इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट देन इट इज नॉट द बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप. राइट. फॉर एग्जाम्पल, टू फ्रेंड्स डिसाइडेड टू स्टार्ट अ कोचिंग सेंटर. अगर सपोज कर लो कोई दो पर्सन्स ने सोचा कि वो लोग कोचिंग सेंटर स्टार्ट करेंगे टू ट्रेन लेस प्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स. उन लोगों को जो अच्छे बच्चे जो मतलब ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, फॉर इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम फॉर फ्री. उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट इसको सोचा है. सो दिस चैरिटेबल वर्क इज नॉट पार्टनरशिप ऑफ बिजनेस बिकॉज देयर इज नो प्रॉफिट मोटिव. इनका मोटिव क्या है? जस्ट वेलफेयर है, जस्ट उनकी सर्विसेज के लिए. तो यहाँ पर प्रॉफिट मोटिव नहीं है. सो बट इफ दे टीच फॉर मनी और फॉर एंड शेयर द अर्निंग देन इट वुड बी द पार्टनरशिप. ओके. अगर वो ये चीज मनी के लिए या फिर अर्निंग के लिए करेंगे देन ये क्या होगा? एक पार्टनरशिप बिजनेस. नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप. So this relationship means that just as an owner is liable for any contract enters into it by his agent operating within the limits of their authority. Similarly, a partner can bind all the partners with this activity. In this way, every partner play a double role of an owner as an agent. वो owner भी खुद है और as an agent भी खुद ही है. यहाँ पर दो रोल वो प्ले करेगा. ठीक है. In this case, this relationship means that just as an owner is responsible for any contract entered into by his agents operating within the limits of their authority. जो भी उसकी अथॉरिटीज हैं उसकी लिमिट्स में रह के वो वर्क करता है, प्लस वो ऑनर भी है. So similarly, partner can bind all the partners with his activity. ठीक है. सब पार्टनर्स से इफेक्ट करता है. एक कोई भी एक्टिविटीज है वो सब पे इफेक्ट करेगी. So in this way, every partner plays a double role, like as an owner and as an agent. Okay. Next, general features. All those features which are not laid down in the law are called general characteristics. First one is the unlimited liability, like sole trade. जैसे हमने sole trade में किया था. So in this business, every partner has an unlimited liability. So every partner is responsible collectively and individually for all the liabilities of partnership. For example,
In case of dissolution of partnership firm, if the liabilities of the firm exceeds its assets, the creditors have the right to get their loan recovered from any partners either collectively or individually. समझ आइए? मीन्स अगर किसी जैसे ये डिसोल्यूशन का मतलब है कि जब पार्टनरशिप फर्म जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी, उसको समाप्त कर देंगे, देन क्या होगा कि अगर सपोज डेप्ट जो है वो ज्यादा हो जाते हैं, मीन्स वो पूरे नहीं कर पाते हैं, पार्टनर्स जो है वो पूरी पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो उस पेमेंट को पूरा करने के लिए जो हमारे क्रेडिटर्स हैं, वो लोग क्या कर सकते हैं, उनके पास राइट है टू गेट देयर लोन रिकवर्ड, वो अपना लोन रिकवर करने के लिए फ्रॉम एनी पार्टनर, किसी से भी अपना लोन रिकवर कर सकते हैं, चाहे तो वो सबसे कर सकते हैं, चाहे वो इंडिविजुअली किसी एक से भी कर सकते हैं, उनके पास ये राइट है. ओके, so that's why जो liability है वो इसमें unlimited है. Next point is no separate individuality. The existence of the partnership cannot be separated from the partners. ये जो जैसे हमने सोल ट्रेड में किया था कि जो बिजनेस है और जो ऑनर है both are the same. So same like sole trade in partnership firm also business and partners both are same. So separate existence नहीं है. So this means that all the contracts connected with the firm are also applicable to the partners individually as well as collectively. सबके साथ वो applicable होगा, जो भी फर्म के साथ कनेक्टेड है ना, जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो सब पार्टनर्स के साथ ऑटोमेटिकली कनेक्टेड हैं, इंडिविजुअली भी और कलेक्टिवली भी. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज द utmost good faith. Absolute faith among the partners is foundation of any partners. आपस में दूसरे के ऊपर फेथ करना. So in the absence of this characteristic, there is no justification left for partnership. अगर आपस में एक दूसरे के ऊपर फेथ नहीं है, तो ये जो पार्टनरशिप है उसमें कभी भी ब्रेक हो सकता है. So good faith here simply means that all the partners should give every type of information affecting the firm to one another, and if necessary will consult other partners before taking any decision and give a true account of all the business deals done by any one of them. So अगर कोई भी पर्सन डील कर रहा है तो उसको वो सबके साथ जो है वो उनकी सजेशंस भी लेनी है और डिसीजन लेने से पहले उनके साथ डिस्कस करना है, ताकि सब लोगों के पास ट्रू पिक्चर रहे हर चीज की और आपस में कुछ भी क्लैशेस ना हो. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज द रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट. So it is clear that the basis of partnership is mutual faith. ये तो आपको पता चली गया कि आपस में इनको म्यूचुअली एक दूसरे के ऊपर जो है फेथ करना जरूरी है. अदरवाइज क्या होगा, नो पार्टनर कैन ट्रांसफर हिज इंटरेस्ट इन द फर्म विदाउट द अप्रूवल ऑफ ऑल द अदर पार्टनर्स. होता क्या है कि कोई भी एक पार्टनर, कोई भी पर्सन जो है, एक पर्सन उसमें से कुछ भी ट्रांसफर नहीं कर सकता है जब तक कि सबका अप्रूवल ना हो, अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं करता. सपोज जैसे कोई ए पर्सन है और वो चाहता है कि वो बिजनेस से अलग होके अपने भाई या अपने बेटे को उसमें ज्वाइन करवा दे, तो वो अकेला ही पर्सन जो है ये डिसीजन नहीं ले सकता जब तक कि बाकी पार्टनर्स की अप्रूवल नहीं होगी. सो ऑल द रिमेनिंग पार्टनर्स विल बी विलिंग टू एक्सेप्ट द न्यू पार्टनर ओनली व्हेन दे फाइंड हिम ट्रस्टवर्दी. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज द टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप. So on the basis of nature of partnership, it can be categorized. First one is the general and limited partnership. General and limited partnership means it refers to that unincorporated business which has two or more owners who have unlimited liability. इसमें क्या होगा इस केस में, जिसमें दो या दो से ज्यादा लोग अनलिमिटेड उनकी लाइबिलिटी रहेगी. So in the general partnership, the liability of the partners is unlimited. जनरल में तो रहता है कि सबकी ही अनलिमिटेड है, जितने भी पार्टनर्स हैं सबकी लाइबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड है जनरल के केस में. बट जो लिमिटेड है, ऑन द अदर हैंड लिमिटेड पार्टनरशिप हैज टू टाइप्स ऑफ पार्टनर्स. फर्स्ट वो कैटेगरी होगी जिसमें जनरल पार्टनर होंगे, सेकंड वो कैटेगरी होगी जिसमें स्पेशल पार्टनर होंगे. जनरल पार्टनर्स वही है जिनकी लाइबिलिटी क्या है, इज अनलिमिटेड, while that the special partner is limited. So there should be at least one general partner. इसमें कम से कम जो सेकंड कैटेगरी है, इसमें कम से कम एक पर्सन ऐसा जरूर हो, वन जनरल पार्टनर ऐसा हो सकता है इन द लिमिटेड पार्टनरशिप में. अगर सपोज अगर 5 पार्टनर्स है तो उसमें से कोई एक पार्टनर ऐसा होगा जिसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी, बाकी 4 लिमिटेड लाइबिलिटीज के साथ वहां पर वर्क कर सकते हैं. ओके, विच मीन्स अ पार्टनर विद अनलिमिटेड लाइबिलिटी.
एक पर्सन को अनलिमिटेड लायबिलिटी इसमें करनी है. ओके. सेकेंड इज पार्टनरशिप एट विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप. इट मीन्स पार्टनरशिप एट विल जो अपने विल से होगा, कैन बी फॉर्म टू रन द बिजनेस फॉर एन इनडेफिनेट पीरियड. यानी कि इसमें while particular partnership can be formed for the some specific object and it ends with the attainment of predetermined specific object. इनडेफिनेट का मतलब है कि ये अपनी मर्जी से है, जब तक वो उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं तब तक की पार्टनरशिप में वो रहेंगे. लेकिन पर्टिकुलर पार्टनरशिप है जिसमें एक स्पेसिफिक पीरियड होगा और ऑटोमेटिकली उस पीरियड के बाद वो उसकी वो पार्टनरशिप जो है वो उससे वो निकल जाएगा, उस एग्रीमेंट से वो निकल जाएगा. ठीक है. तो पार्टनरशिप एट विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप. ओके. Next point is the legal and illegal partnership. Although it is not essential to get the partnership registered under Indian Partnership Act 1932 in order to bring it into existence, yet the partnership organization have to work in accordance with the provision of the act. So जो partnership which work according to the provisions, जो भी हमारे provisions 1932 के उसके अंदर जो work कर रही है, that is considered legal. उसको हम legal कहते हैं and are called legal partnership. और जो इसके रिवर्स है, ऑन द कॉन्ट्रेरी, पार्टनरशिप बिकम्स इलीगल और नॉन सेशनरी. लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल ये कुछ कंडीशंस है हमारे पास. इफ द पर्पस ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज इलीगल, उनका पर्पस जो है वो इलीगल है. इफ द बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, इफ द नंबर ऑफ पार्टनर्स रिड्यूसेस टू 1 और एक्सीड्स द मैक्सिमम लिमिट. मान लीजिए जो लिमिट है वो 50 और उन्होंने 51 52 कर दिया तो ऑटोमेटिकली वो इलीगल हो जाएगा. अगर मिनिमम 2 है तो अगर 2 नहीं है अब 1 रह गया है तो उस केस में भी ये इलीगल हो जाएगा. इफ देयर इज एनी पार्टनर फ्रॉम एन एनिमी कंट्री, अगर कोई हमारी एनिमी कंट्री से कोई पार्टनर इसमें ऐड है तो वो भी ऑटोमेटिकली इलीगल पार्टनरशिप हो जाएगा. ओके. सो नेक्स्ट टॉपिक इज द इवैल्यूएशन. इवैल्यूएशन में उसकी मैरिट्स एंड डीमेरिट्स, क्या उसके प्लस पॉइंट्स हैं और क्या माइनस. हमने वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द फीचर्स और फीचर्स में सब पॉइंट्स आ गए हैं, चाहे उसके कुछ प्लस पॉइंट है और कुछ उसके माइनस पॉइंट. चेक करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मेरिट, इजी फॉर्मेशन एंड क्लोजर. इजी फॉर्मेशन है बिकॉज यहाँ पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 गवर्न्स द पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस. सो दिस गवर्न्ड बाय एन एग्रीमेंट, रिटन और ऑरल, कुछ भी हो सकता है. सो द एग्रीमेंट स्टेट्स द टर्म एंड कंडीशन. जिसमें एग्रीमेंट में वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन स्टेट होती हैं ऑफ हाउ द पार्टनर्स शैल देयर शेयर, देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, profits or losses and manners in which they will conduct the deal. Okay, so इसमें दोनों केसेस में आप कर सकते हो, चाहे रिटन है चाहे वो ओरल है. so there is no need to observe any legal formalities. बहुत लंबी छोटी formalities नहीं है इसमें. like sole trade and the registration for partnership form is not compulsory, so there is not much expense involved in the establishment. So it can be easily formed. Second is a balanced decision making. Partnership organization is a group of people with the different qualities. Whatever decisions are taken in it are based on the consideration among all the partners. So in this way, every business decision happens to be balanced. Third is the, क्योंकि यहाँ पर सब तरह के लोग होंगे ना, किसी के अंदर कोई क्वालिटी है किसी के अंदर कोई क्वालिटी है, तो बैलेंस डिसीजन रहता है. थर्ड इज अ मोर फंड. सोल ट्रेड की तरह जो उसमें लिमिटेशन थी, उसकी जो लिमिटेड कैपिटल थी, तो वो यहाँ पर आपकी कवर हो रही है. The sole trade suffers from the demerits of lack of capital, but the partnership business is free from the drawbacks. क्योंकि यहाँ पर जितने पार्टनर्स आएंगे वो कैपिटल लेके आएंगे और कैपिटल आपकी इंक्रीज होती जाएगी. नेक्स्ट इज द शेयरिंग ऑफ रिस्क. शेयरिंग ऑफ रिस्क मीन्स unlike the sole trade, entire burden is in case of loss अगर हो जाता है तो does not fall on only single or one person, so but gets divided among many persons. अगर लॉस है या रिस्क के केस में जो भी डिवाइड हो जाएगा सब लोगों के बीच में. Software freeze or secrecy. The accounts of partnership firm are not presented before the public, क्योंकि पार्टनरशिप और सोल ट्रेड के केस में इनको अकाउंट्स जो है वो डिस्क्लोज करना कंपल्सरी नहीं होता. सो दैट्स वाई जो भी इनके वीकनेसेस होती हैं, जो भी इनके वीक पॉइंट्स होते हैं ना, तो वो इनके पास लिमिटेड इन्हीं के पास रहते हैं, सीक्रेट रहते हैं. So in this way, there is a more secrecy in the partnership as compared to the company. Okay, and then limitations. First is the unlimited liability. तो यहाँ हमने इसका टाइप करे थे, इसमें जनरल एंड लिमिटेड पार्टनरशिप. जनरल के केस में सारे पार्टनर्स मैंने बताया उनकी लायबिलिटीज जो है वो अनलिमिटेड होती है, और लिमिटेड के केस में एक सिंगल पर्सन की लायबिलिटी अनलिमिटेड है.
मीन्स दोनों ही केसेस में अनलिमिटेड लाइबिलिटी तो रहेगी ना. So in partnership, every partner has an unlimited liability. So every partner is responsible collectively or individually for all the liabilities of the partnership. For example, in case of dissolution of partnership, if the liability of the firm exceeds its asset, the creditors have same way example as right, creditors have to the right to get their loan recovered from any partner either collectively or individually. Okay. Second is the limited resources. तो यहाँ भी एक लिमिट है क्योंकि मैक्सिमम लिमिट 50 की मैंने आपको बताई थी. अगर उससे भी ज्यादा अगर आपको अगर एक्सटेंड करना है तो अब आपके पास आगे ऑप्शन नहीं है. So in the partnership business, the financial resources remain confined to the capital of the partners and their capacity to raise loans. At the time of expansion of the business, financial resources prove to be insufficient. So in such a situation, the limit of to provide finance has almost ended in case of old partners. And new partners also cannot be admitted beyond a certain limit. So hence the partnership system is not useful in respect of the continuously developing business. अगर आप चाहते हैं कि लगातार आपका बिजनेस कंटिन्यूसली डेवलप होता रहे तो वो हमेशा बार की इसमें नीड हुई है तभी वो बिजनेस ग्रो करता है. और एक लिमिट के बाद जैसे कि 50 अगर पर्सन हमने ले लिया और उनकी जितनी कैपेसिटी थी उन्होंने पैसा इसमें इन्वेस्ट कर दिया और जितना लोन हम मार्केट से ले सकते थे हमने उतना भी ले लिया. अब उसके बाद यहाँ पर लिमिट खत्म हो जाएगी तो उसके बाद यहाँ फिर ग्रो होना बंद हो जाता है.